Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter. Is cycling is her passion. Okay. Now about the story takeaway or theme. Dervla Murphy's journey to Banyan exemplifies the transformative power of exploration and self-discovery, highlighting resilience and the unexpected adventures that shape personal growth and understanding. तो डेवला मर्फी की तो जो जर्नी रही है बैमियन तक, वो किसका एग्जाम्पल रही है? ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी, कि किस तरीके से जब आप एक्सप्लोर करने निकलते हो या सेल्फ डिस्कवरी के लिए निकलते हो तो वो आपकी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। हाईलाइटिंग रेजिलियंस एंड अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स, और कैसे जब आपके सामने कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स आपकी लाइफ में आते हैं, तो वो आपको कैसे आपको शेप करते हैं, आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ को शेप करते हैं एंड योर अंडरस्टैंडिंग। So let's start with our chapter. Shortly after her 10th birthday, Darla Murphy decided to cycle to India. Almost 20 years later, the Irish woman set out to achieve her ambition, cycling all alone from Ireland to India on her trusted bike, Rose. She thought of her bike as a friend because they had gone through so much together across deserts and snow-capped mountains. This extract from her travelogue called Full Tilt is about her travel across the Shibhar Pass in the mountains separating Afghanistan from Pakistan at a height of almost 3,140 meters. तो यहाँ पे बताया गया है डेवला मर्फी के बारे में, एक छोटा सा इंट्रो दिया हुआ है कि आफ्टर हर 10th बर्थडे, उसके 10th बर्थडे के कुछ टाइम बाद ही डेवला मर्फी ने डिसाइड करा कि वो इंडिया साइकिल करते हुए जाएंगी। तो ऑलमोस्ट 20 साल बाद उस आयरिश वुमेन ने अपने इस एम्बिशन को अचीव करने के लिए अकेले आयरलैंड से साइकिल करना शुरू करा टुवर्ड्स द इंडिया। वो अपनी बाइक को, अपनी बाइसिकल को, या फिर जिसे हम बाइक भी कहते हैं, उसे अपना दोस्त मानती थी क्योंकि उन्होंने साथ में बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है फ्रॉम हर ट्रैवलॉग, जिसे फुल टिल्ट कहा जाता है, जहां पर वो शिहर बार पास कर रही हैं, जो कि क्या है, माउंटेन्स हैं जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करते हैं एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 3,140 meters. Now section 1. Bamiyan, 22 April. Another day of incredible, unforgettable and indescribable beauty, plus our highest climb yet, 10,380 feet over the Shibar Pass. I felt like a fly going up a wall. डेट यहाँ लिखी गई है बैमियन, डेट क्या है, 22 अप्रैल। तो यहाँ पर मर्फी लिखती हैं कि एक और दिन जो कि बहुत इनक्रेडिबल रहा, अनफॉरगेटेबल और इनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी से भरा हुआ था, प्लस हमने पहली अपनी हाईएस्ट क्लाइंब करी है, दैट इज 10,380 फीट ओवर द शिबर पास, और हमें ऐसा लग रहा है मानो वो एक फ्लाई है जो कि एक वॉल के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। At breakfast this morning, Mohammed tried to persuade me to go buy a truck, as he simply didn't believe a cycle could be got over the shiver. But when I reached the foot of the pass, I was very glad I hadn't agreed to his kind suggestion. At the moment, there was heavy traffic on that route. तो ब्रेकफास्ट के समय सुबह मोहम्मद ने उन्हें परसुएट करने की कोशिश करी कि आप ट्रक से चले जाओ इंस्टेड ऑफ साइकिल, शिवर को आप बाय ट्रक क्रॉस कर लो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन योर बाइक, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब वो उस पास पर पहुंची तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उन्होंने उनके सजेशन को नहीं लिया, बिकॉज एट दैट मोमेंट वहां पे उस रूट पे बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक था।
It was at the end of that disaster hit Rose. She suffered two vicious rips in the back tire, and I doubt if they can be patched. The road is excruciating, but personally, I have got used to the feeling of being dislocated in every joint at one bump and relocated at the next. However, it's different for poor Rose, and today's calamity, yeah. And today's calamity was my fault. I let her go too fast down the pass. This was because of the back brake again giving trouble, so that the alternative to cycling too fast was walking. And when you have walked up to 3,140 meters, you don't feel much like walking down. तो अब क्या हुआ? It was at the end. आखिर में क्या हुआ? रोज रोज क्या है? उनकी बाइक का नाम है, और उसे कुछ दिक्कत हो गई, उसमें विशियस रिप्स आ गए बैक टायर में, एंड शी डाउटेड दैट इट कैन बी रिजॉल्व, दैट कैन बी पैच्ड। जो रोड थी वो बहुत अच्छी थी और पर्सनली बहुत एक्सक्रूशिएटिंग थी, उसमें बहुत सारे टर्न्स थे, बम्प्स थे, एंड पर्सनली she was used to the feeling of being dislocated in every joint at one bump and relocated at the next. लेकिन रोज के लिए वो अलग थी, और आज की जो दिक्कत हुई साइकिल में वो किसकी? वो मर्फी की गलती थी। क्यों? क्योंकि जब वो पास से नीचे आ रही थी तो उन्होंने काफी स्पीड में आना शुरू करा, काफी स्पीड से आती रही, और क्योंकि बैक ब्रेक में दिक्कत हो रही थी तो साइकिलिंग का अल्टरनेटिव था कि वो वॉक करते हुए जाते। और जब उन्होंने इतनी वॉक कर चुके थे कि वो 3,140 मीटर चढ़ चुके थे, तो उनको नीचे आते हुए वॉक करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वो साइकिल से ही नीचे आने लगे और साइकिल में दिक्कत हो गई। At this stage, it was 5:15 p.m. and we were some 20 miles from Bamiyan, near the junction of the Mazar-Bamiyan road, where there is a tiny village called Bulola. I asked about a bus, and one was pointed out as going to Bamiyan in a few minutes. So Rose was loaded up and I sat in. तो अब क्या हुआ? अभी क्या टाइम हो रहा था? शाम के 5:15 बज रहे थे, और अभी बेमियन जो था वो कुछ 20 मील दूर था। तो मजार बेमियन रोड पर एक जंक्शन पर गई मर्फी, और वहां पर एक छोटा सा विलेज था जिसे कहा जाता था बुलोला। वहां पर उन्होंने एक बस के बारे में पूछा जो ब्यामियन जा रही हो, तो वहां पर उन्हें एक बस की तरफ पॉइंट करते हुए कहा गया कि कुछ ही मिनट में वहां की तरफ रवाना होगी। तो उन्होंने अपनी साइकिल को उस पर लोड किया और बस में बैठ गई। My other buses were luxurious compared to this one. The floor was covered in sheep and goat droppings, and the steering wheel was held together with sticking plaster, a device not calculated to soothe one's nerves on a journey in this terrain. अब ये, इससे पहले मर्फी ने जिन भी बसेस में ट्रैवल किया वो कुछ लग्जरियस थी, लेकिन ये ऐसी नहीं थी। यहाँ का जो बस का फ्लोर था वो शीप और गोट की ड्रॉपिंग से कवर्ड था, और जो स्टेयरिंग व्हील था वो किसी तरीके से स्टिकिंग प्लास्टर से जोड़ रखा था, जो कि किसी की नर्व्स को दिक्कत कर दे देख के कि आखिर ये बस पहुंचेगी कैसे, ये सफर कैसे पूरा करेगी। We finally set off at 6:20 p.m., by which time I was frozen stiff. It had been raining hard and there was no glass in the windows as usual. अब जो बस रवाना हुई वो 6:20 पर रवाना हुई शाम के, और इस समय तक मर्फी बिल्कुल जम चुकी थी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और विंडोज भी नहीं थी बस। I sat patiently watching huge piles of hides being roped together and tied to the roof till the whole rickety contraption looked gruesomely top heavy, and just before our departure, 9 men had climbed up and settled down on top of the hides, wrapping themselves in their huge rugs. About 2 miles beyond Bulola, the engine broke down. It was now dark and raining, and the repairs
during which the headlights were put out of order, took very nearly an hour. At 7:30 p.m., we resumed the journey up and over a 10,000 foot pass on a corkscrew road. अब क्या हुआ? जो मर्फी थी वो शांति से बैठे हुए देख रही थी कि किस तरीके से सारी चीजों को ऊपर बांधा जा रहा है रोप पर। ठीक है, रोप से सारी चीजों को ऊपर बांधा जा रहा है, जो भी लगेज और बाकी सब हैवी सामान है। और इससे पहले कि गाड़ी चलती, 3 लोग ऊपर जाकर बैठ गए और अपने आप को रैप कर लिया अपने रक्स में। कुछ 2 मील दूर जाके, बुलोला से 2 मील दूर जाके बस का इंजन खराब हो गया। अब काफी अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी और रिपेयर्स चालू करनी पड़ी। जो हेडलाइट्स थी उन्हें बंद करना पड़ा और इस रिपेयर में कुछ 1 घंटा लग गया। अब 1 घंटे बाद 7:30 पे उन्होंने दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करी ऊपर की तरफ और कुछ 10,000 फुट पास उन्होंने किए। नाउ सेक्शन 2, it was barely wide enough for one vehicle, with sheet drops which I could imagine, but happily not see, as there was no light. Then quite soon there was light, lots of it, when the daily spring thunderstorm began. For several minutes, lighting was continuous, not flashes as we know them, but glaring sheets of blue illumination revealing God's peaks on one side and striking ravines on the other. Yet it was all so beautiful and awe-inspiring that one simply forgot to be afraid. The thunder reverberating in the mountains was deafening peal after peal, the echoes of each being drowned in the crash of the next. With all this came gusts of gale force, wind carrying enormous hailstones which took the skin off my nose where they stuck it as I sat next to the window that wasn't. अब क्या हुआ? जो रोड थी वो बेरली एक व्हीकल को चलाने लायक थी, यानी कि अगर एक साथ 2 व्हीकल्स वहां पर निकल जाएं तो वहां से 2 व्हीकल्स एक साथ नहीं निकल सकते, एक बार में सिर्फ एक ही व्हीकल वहां से जा सकता है। और बहुत सारी ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स पड़ने लग रही थी। ठीक है, और वहां पर कोई रोशनी नहीं थी जिस वजह से उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था और जिसे जानकर वो खुश थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अचानक से बहुत सारी लाइट आ गई। कैसे? बहुत बिजली कड़कने लगी, थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। कुछ मिनटों बाद लाइटनिंग जो थी वो कॉन्टिन्यूअस हो गई, फ्लैशेस नहीं बल्कि लाइटनिंग, जैसे कि ब्लू इल्यूमिनेशन, जिससे सारी चीजें दिखने लगी थी। जितनी भी पीक्स थी, माउंटेन पीक्स थी, वो दिख रही थी। लेकिन वो सब इतना सुंदर था कि उन्हें वो भूल ही गई कि उन्हें यहाँ पर डरना भी चाहिए, क्योंकि रोड बहुत पतली थी और एक के बाद एक ऐसे ही बादल गरजने लगे। इसी के साथ बहुत ज्यादा फोर्स से विंड भी चलने लगी और हेलस्टोन्स बरसने लगे, जो कि जब मर्फी के ऊपर पड़े तो उनको ऐसा लगा मानो उनकी स्किन ही उनकी नाक से उतर गई हो, जहां वो विंडो के किनारे बैठी हुई थी, हालांकि वहां पर कोई भी विंडो नहीं थी। There are limits even to Afghan toughness, and when this demonstration started, the bus stopped for 9 men on the roof to come below. As the inside was already overcrowded beyond belief, this meant that I had 3 children on my lap for the rest of the journey. I had only one 2-year-old at the beginning. We waited for about 15 minutes until the worst was over. अब क्या हुआ? अब अफगान टफनेस, यानी कि अफगान लोगों की टफनेस तक, जो वो मजबूत बने रहते हैं, उसकी भी एक लिमिट थी। और जैसे ही ऊपर हेल स्टॉर्म शुरू हुआ वैसे ही बस को रोका गया ताकि जो 9 लोग ऊपर बैठे हुए थे रूफ पर वो बस के अंदर आ सके। अब बस जो थी वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा भरी हुई थी, ओवर क्राउडेड थी, और अब वो 9 लोग भी नीचे आ गए, जिसका मतलब ये कि अब मर्फी की गोद में 3 बच्चे बैठे हुए थे बाकी की जर्नी के लिए।
पहले तो उनके पास सिर्फ 2 साल का एक बच्चा था, लेकिन अब उनके ऊपर और 2 बच्चे आ गए। और ये पूरा सफर खत्म होने के लिए अभी उन्होंने 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। To attempt to negotiate the winding track with the driver intermittently dazzled by lightning would have been suicidal. To my mind, the whole trip wasn't far short of suicidal anyway. Yet, what an experience to see a landscape dramatic in itself under such melodramatic conditions. अब इससे पहले कि मर्फी कुछ कहती किसी से भी, ड्राइवर से या फिर किसी से भी, कि एक रास्ते को लेके और जो सिचुएशन बस के अंदर बनी थी कि इतनी ज्यादा भीड़ है, वो काइंड ऑफ सुसाइडल होता, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा था कि ये जो पूरी ट्रिप है, ये जो हम पूरा होते हुए आ रहे हैं इन रास्तों पर, ये भी कुछ सुसाइडल से कम नहीं है। लेकिन उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत सुंदर भी रहा, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स देखने को मिले, विच इन इटसेल्फ वाज ड्रामेटिक, और काफी मेलोड्रामेटिक कंडीशंस के साथ। Soon after we had restarted, a melodrama of a different kind began. The system on these privately owned buses is that the owner driver's assistant, usually an adolescent known as a bachcha, collects the fares during the journey. और जैसे ही बस को दोबारा शुरू किया गया तो एक और दूसरा मेलोड्रामा शुरू हो गया। यूजुअली इन प्राइवेटली ओन्ड बसेस में एक सिस्टम होता है कि ड्राइवर का, ओनर का जो ड्राइवर है उसके साथ एक असिस्टेंट होता है, जो कि नॉर्मली एक टीनेजर होता है, एक एडोलेसेंट होता है, जिसे बच्चा कहते हैं, जो कि जर्नी के दौरान सबसे पैसे लेता है, फेयर कलेक्ट करता है। The bacha now asked 12 Afghanis from everyone, and a number of passengers protested that 10 had been agreed on before the start. Hell then broke loose, and while I was bundling the children under the seat, an infuriated tribesman, brandishing his rifle, climbed over me, trying to get at the driver. The butcher pushed him and he fell backwards, striking me a fright blow on the ribs with the rifle butt. I looked around to see a terrifying forest of rifle barrels behind me, terrifying because in a jolting bus I imagined them going off accidentally. But of course, these men know exactly what they are doing with their triggers, if not with their butts, and nothing of the sort happened. अब क्या हुआ, बच्चे ने सब लोगों से 12 अफगानिस, ठीक है, उनकी करेंसी में एक काइंड ऑफ 12 रुपए लेना शुरू किया जर्नी के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे पैसेंजर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा कि इस सफर से पहले 10 पर एग्री किया था हमने, अब तुम 12 नहीं कह सकते। और यही चलते चलते अब क्या हुआ, उस बस में झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। अब किसी तरीके से जो मर्फी थी उसने 3 बच्चों को संभाल रखा था अपनी सीट पर। तब एक इन्फ्यूरिएटेड ट्राइब्समैन आया और उसने हाथ में अपने राइफल ले ली थी, जो कि मर्फी के ऊपर से क्लाइम होता हुआ ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बच्चे ने उसे पुश किया और वो पीछे जाकर गिर गया, लेकिन इतने में मर्फी की रिब्स में क्या हुआ, राइफल के पीछे का हिस्सा लग गया। अब मर्फी इधर उधर देखने लगी और उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी राइफल्स लोगों ने बाहर निकाली, और उसके लिए बहुत टेरिफाइंग था, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कोई भी राइफल गलती से चल गई तो यहाँ पर जाने भी जा सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उन लोगों को पता था कि वो अपनी राइफल्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनके हाथों में ट्रिगर्स हैं और ट्रिगर कब दबाने हैं, कैसे चलना है। लेकिन और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, किसी को भी कुछ गोली वोली नहीं लगी। नाउ सेक्शन 3, थर्ड पार्ट। The unarmed bacha continued his heroic defense of the driver, and the bus stopped yet again. The driver got out and stood, grasping his gun and refusing to go another yard until everyone has paid their 12 Afghanis, and I hastily produced mine.
vaguely hoping to set a good example. But I was completely ignored while the verbal battle raged and everyone fingered his trigger menacingly as though it wouldn't be verbal much longer. The angry shouts of all concerned almost drowned both the thunder and the hiss of the hail slashing down. Finally, one of the passengers threatened to smash the inside light with his rifle butt. अब क्या हुआ? जो बच्चा था, जो असिस्टेंट था ड्राइवर का, वो तो अनार्म था, उसके पास कोई भी आर्म, कोई भी तरीके का वेपन नहीं था और वो ड्राइवर को अपने बचाने की कोशिश करता रहा और अब बस फिर से रोक दी गई। जो ड्राइवर था वो बाहर निकला और अपनी गन को लेके आगे जाने के लिए मना कर दिया, कहा कि जब तक सब लोग अपने 12 अफगानीज नहीं पे करते तब तक मैं नहीं हिलूंगा। तो टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, मर्फी अपने पैसे दे देती है लेकिन सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और अब वर्बल जो था, अब जो लड़ाई थी वो वर्बल शुरू हो गई, लेकिन सब लोगों के हाथ में ट्रिगर थे, ठीक है, अपने अपने वेपन्स थे, तो ये जो लड़ाई थी ये ज्यादा देर तक वर्बल नहीं रहने वाली थी। ठीक है, तो अब जो एंग्री शाउट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जिसके अंदर थंडर और हेल स्टॉर्म की आवाजें दबने लगी। फाइनली एक पैसेंजर था गाड़ी में जिसने कहा कि अगर ड्राइवर नहीं चलेगा तो वो क्या करेगा, वो अंदर की लाइट को अपनी राइफल से तोड़ देगा। Then a compromise of 11 Afghanis was accepted, whereupon the driver resumed his seat and off we went again. This time, rather to my astonishment, we kept on going at some 15 miles per hour until reaching Bamiyan. अब क्या हुआ, अब क्योंकि दोनों के बीच में, ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, इतनी बातें हो रही थी, तो एक कॉम्प्रोमाइज किया गया और 11 अफगानीज को सेट किया गया कि जर्नी के लिए ना 10 ना 12, बीच का रास्ता 11 देंगे। अब ड्राइवर ने अपनी सीट पकड़ी और अब दोबारा से गाड़ी को शुरू कर दिया गया। इस बार क्या हुआ, रेदर टू मर्फीज एस्टोनिशमेंट, अब जो गाड़ी थी वो लंबी चलती रह गई और 15 मील पर आवर की स्पीड पे फाइनली वो बैमियन पहुंचे। रोज एंड आई वर descended in total darkness and I was told that the hotel lay on my left. अब रोज जो उनकी साइकिल थी और मर्फी को उतारा गया और डार्कनेस थी, वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, उन्हें बताया गया कि उनका जो होटल है वो लेफ्ट साइड में है। As I was switching on Rose's light, a policeman appeared and almost wept with joy when he saw me. He'd been expecting me hours earlier. He had a storm lantern and led me on a mile-long walk up a very steep hill to the hotel. We were halfway up when we encountered a car stuck in deep, loose gravel and being pushed by two softly swearing men. Afghanistan's tourist trade is so flourishing that after a few weeks in the country, most tourists are on Christian name terms with each other. अब क्या हुआ, जैसे ही मर्फी अपनी साइकिल की लाइट ऑन कर रही थी वैसे ही वहां पर एक पुलिसमैन आ गया जो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और वो उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ घंटे पहले ही आने वाली थी। उनके पास एक स्टॉर्म लालटेन थी जिसके रोशनी के चलते वो एक स्टीप हिल पर चढ़ने लगे उनके होटल की तरफ। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाड़ी कहीं पर अटक गई है और दो लोग उसे बाहर निकालने के लिए पुश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो टूरिस्ट ट्रेड है वो काफी ज्यादा अच्छी, काफी ज्यादा फ्लरिशिंग है। ठीक है, तो कुछ ही हफ्तों में जो कंट्री के टूरिस्ट होते थे they came on first name basis. Hi, what's wrong? I yelled, having recognized three very nice Indians I'd met in Kabul. तो जब मर्फी ने देखा कि वो लोग कौन है, कि वो उनसे मिल चुकी हैं, वो कुछ इंडियन लोग हैं जिनसे वो काबुल में मिली थी, तो वो उनसे पूछती है कि हाय क्या हुआ। They said that after the 140 miles from Kabul, everything that could go wrong with the car was wrong and now
they just wanted to get her as fast as the hotel to avoid leaving her unguarded all night. So Ross was dropped by the wayside and the policeman and I added our pushes, during which operation I began to suspect that my lowest right rib had been fractured by the rifle butt. When we eventually got the unfortunate machine over the crest of the hill, the policeman said that he'd go back to the village as I had found friends. Then, having retrieved Rose, I walked on with two of the Indians who had stayed out of the car to save it extra weight. अब क्या हुआ? उन इंडियंस ने बताया कि कुछ 140 माइल काबुल से 140 मील आकर एक गाड़ी के साथ जो भी गलत हो सकता था वो हो गया, यानी कि अब गाड़ी में दिक्कत हो गई है और वो इस गाड़ी को किसी तरीके से होटल तक खींच के लेके जाने की कोशिश करें ताकि उन्हें इसे रात को यहाँ पर अनगार्डेड ना छोड़ना पड़े। तो रोज ने कट तो मर्फी ने अपनी साइकिल को साइड में छोड़ा और पुलिसमैन और उसने अब गाड़ी को पुश करने में हेल्प किया। जब वो पुश कर रहे थे तो मर्फी को लगा कि उनकी जो लोएस्ट राइट रिब है, राइट साइड की जो लोएस्ट रिब है वो फ्रैक्चर हो गई। जो राइफल उनके लग गई थी उसकी वजह से वो फ्रैक्चर हो गई है। फाइनली इवेंचुअली क्या हुआ, वो उस मशीन को लेके, उस कार को लेके होटल तक पहुंचे, हिल के ऊपर तक पहुंचे। पुलिसमैन ने कहा कि अब वो विलेज जा रहा है क्योंकि मर्फी को उनके दोस्त मिल चुके हैं। मर्फी ने अपनी बाइसिकल को रिट्रीव करा एंड शी वॉकड ऑन विद द टू इंडियंस जो कि गाड़ी से बाहर रहे ताकि गाड़ी में कोई भी एक्स्ट्रा वेट ना हो और उसे आसानी से पुश किया जा सके। We were trotting along now with code and exchanging our harrowing experiences of the road when a blood curdling yell halted us as we found ourselves looking down the barrel of a rifle held by a very young soldier. अब वो लोग रास्ते में चलते चलते ठंड की वजह से काफी नम पड़ चुके थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करना शुरू करे कि यहाँ तक आते हुए रोड पर उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस करने को मिला। तभी एक आवाज के चलते वो लोग एकदम से रुक गए। उन्हें एक आवाज आई और जब उन्होंने देखा तो एक राइफल उनकी तरफ पॉइंट करी गई थी बाय अ यंग सोल्जर। We gave a chorus of little yells of terror and said, "Hotel, hotel, tourists, hotel." तभी वो तीनों आप धीरे धीरे चिल्लाने लगे। क्या? अब वो काफी ज्यादा डर गए थे तो इन टेरर वो सब बताने लगे कि हम होटल जा रहे हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम होटल जा रहे हैं। But the sentry wasn't at all sure that three strangers, one with a bicycle and two without luggage, coming suddenly out of the black, cold night, could be genuine tourists. So he kept us covered until another soldier had examined our passports. This second lad then led us to the hotel, some 200 yards away from what is apparently a military barrack. अब क्या हुआ, लेकिन जो वो सोल्जर था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आउट ऑफ नोवेयर ये तीन अजनबी जो जिसमें से एक के पास बाइसिकल है और दो के पास लगेज भी नहीं है, वो आउट ऑफ द ब्लैक कहीं से आ गए हैं इस ठंडी रात में और वो जेन्युइन टूरिस्ट हो सकते हैं। तो उसने उन पर गन को ताने रखा, अपनी राइफल को ताने रखा जब तक दूसरे सोल्जर ने आके उनके पासपोर्ट्स को एग्जामिन नहीं कर लिया। उसके बाद जो दूसरे सोल्जर थे वो उन्हें होटल तक लेके गए जो कि वहां से कुछ 200 यार्ड दूर था, जो कि अपेरेंटली एक मिलिट्री बैरक भी था। It was depressing, if not altogether surprising, to discover that here there was a no food or drink of any description, B, no light, C, no water, D, no heating, and E, only one thin blanket on each bed. अब ये सब उनके लिए काफी डिप्रेसिंग था कि अगर सरप्राइजिंग नहीं तो फिर भी डिप्रेसिंग, जब उन्होंने देखा कि वहां पर उन्हें क्या क्या अमेनिटीज मिल रही हैं।
वहां पर कोई भी खाना या पीने का सामान किसी भी तरह का नहीं था, कोई भी लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कोई भी गर्म रखने की चीज नहीं थी, जैसे हीटर्स वगैरह भी नहीं थे। और सिर्फ एक पतली सी ब्लैंकेट थी हर एक बिस्तर पर। As we were now 8,550 feet above sea level, it was not funny. और क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊपर थे, काफी ज्यादा ऊंचाई पर थे, तो ये सब कोई हंसने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वहां का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था और उनके पास कुछ खाने पीने का सामान भी ऐसा नहीं मिला उन्हें वहां होटल में। I had coffee and sugar and bread with me, and the boys had some cut, tinned sausages and pineapples. So we scraped together a meal of salt by the light of oil lamps borrowed from the military, making coffee with the boys' emergency water supply. तो फाइनली अब क्या था, अब उनके पास जो भी सामान था, जैसे कि मर्फी के पास कुछ कॉफी, शुगर और ब्रेड थी, और उन बॉयज के पास कुछ टिन्ड सॉसेजेस और पाइनएप्पल्स थे, तो उन्होंने साथ में एक छोटी सी मील अपनी तैयार करी विद द हेल्प ऑफ सम ऑयल लैम्प्स जो कि उन्होंने मिलिट्री से बोरो किए, और उन्होंने कॉफी बनाई बाय यूजिंग बॉयज इमरजेंसी वाटर सप्लाई। Then we raided a vast number of empty bedrooms and accumulated 6 blankets each. I am now sitting up in bed, swathed in my six, with numb hands and feet, and a howling gale blowing through the loose window frame. But I suppose I should be grateful for glass in the windows. उसके बाद जब उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने बाकी सारे कमरों में जाकर देखना शुरू करा। हर कमरे में, हर बिस्तर पर एक ब्लैंकेट, तो उन्होंने सभी कमरों में जाकर उन ब्लैंकेट्स को इकट्ठा करना शुरू करा, और फाइनली उन सबके पास 6 ब्लैंकेट्स ईच थी। तो अब मर्फी अपने बेड पर बैठी हुई थी, अपनी 6 ब्लैंकेट्स को ओढ़ करके। उनके हाथ जो थे वो सुन्न पड़ चुके थे, सेम वे उनके पैर भी सुन्न पड़ गए थे, और बाहर से जो विंडो फ्रेम था वो लूज था, जहां से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। बट वो इसके लिए ग्रेटफुल थी कि कम से कम उस विंडो पर ग्लास तो लगा है, कि वो खिड़की तो एटलीस्ट कवर्ड है। तो यहाँ पर एक छोटी सी जर्नी के बारे में बताया गया है मर्फी की, कि किस तरीके से वो बैमियन पहुंचते हैं, और वहां जाके उन्हें रास्ते में किस तरीके से एडवेंचर का सामना करना पड़ता है। Now about the summary of the chapter. Cycling is her passion, chronicles Devla Murphy's remarkable solo journey to Bamiyan on Rose, her cycle. During the travel, her companion got severely injured and she had to take a bus to the destination, where she came across many adventures. Finally, she reached Bamiyan, where she met 2 Indians who were stopped from entering a hotel as they all appeared to be deceptive. The story is not merely a travelogue but a testament to the transformative power of exploration and self discovery. The cycling is her passion, जो डेवला मर्फी की एक ट्रैवलॉग का पार्ट है, वो उनकी सोलो जर्नी के बारे में है टू बैमियन। कैसे अपनी साइकिल रोज पर बैमियन जाती है, और इस ट्रैवल के दौरान किस तरीके से उनका कंपेनियन कौन है, उनकी साइकिल रॉस, उसे वो सीवियरली इंजर्ड हो जाती है, उसे बहुत वो तकलीफ हो जाती है, तो उसके चलते उन्हें अपनी डेस्टिनेशन के लिए बस में सफर करना पड़ता है, और बस में चलते उनके साथ उन्हें कई एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। फाइनली जब वो बैमियन पहुंचती हैं, तो वो कुछ 2 इंडियंस से मिलती हैं, जिन्हें होटल में जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उनकी कहानी सोल्जर्स को डिसेप्टिव लगती है, कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो ट्रैवलर्स नहीं है। तो ये स्टोरी सिर्फ उनका ट्रैवलॉग नहीं है, बल्कि एक टेस्टामेंट है जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की बात करता है, कि कैसे एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी आपको ट्रांसफॉर्म करता है। Now about the new words that we came across in this chapter.
विशियस रिफ्स यानी कि डेंजरस पंचर्स। ठीक है, साइकिल में पंचर हो गए थे जिसकी वजह से वो साइकिल से अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकती। इनफ्यूरिएटेड यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा, वेरी एंग्री। स्वेटेड, रैप्ड, ओढ़ के अपने आप को रैप कर लेना, जहां पर मर्फी 6 ब्लैंकेट्स को लेके अपने आप को रैप कर लेती है। ब्लड, हॉरिफाइंग, एक्सक्रूशिएटिंग यानी कि सरफेस दैट इज डिफिकल्ट टू ट्रैवल अपॉन, एक ऐसा सरफेस जिस पर ट्रैवल करना काफी मुश्किल है। जैसे कि जो रास्ता था, जिस पतले से रास्ते से वो लोग बैमियन सफर कर रहे थे उस बस में। कॉर्क्सक्रू रोड, हेयर स्पायरिंग और विंडिंग रोड, यानी कि जैसे पहाड़ों पर रोड होती है घूमती हुई बहुत सारे शार्प टर्न्स के साथ, वैसी रोड। ब्रांडिशिंग यानी कि वेविंग अराउंड इन अ menacing way. Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, what mode of transportation does Devla Murphy primarily use in the story? कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मर्फी यूज करती हैं इस स्टोरी में? अपनी बाइसिकल, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ही kept us covered in the except means, इस पूरी स्टोरी में जब एंड में वो होटल वापस जा रहे होते हैं और वहां पर एक सोल्जर आता है एंड शी सेज दैट ही kept us covered, तो इसका मतलब क्या है? कैप्टन विजिल kept his rifle aimed at या provided shelter, इसका मतलब होता है कि kept his rifle aimed at। ठीक है, उस सोल्जर ने क्या करा, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हो गई कि वो ट्रैवलर्स ही हैं, तब तक उन्होंने उसके ऊपर अपनी राइफल को ताने रखा। नेक्स्ट, द स्पीकर वांटेड टू रीच, स्पीकर कहाँ पहुंचना चाहती थी? स्पीकर वांटेड टू रीच बेमियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आफ्टर रीचिंग द होटल द गर्ल हैड, जब वो लोग होटल पहुंच गए तो लड़की के पास, मर्फी के पास क्या क्या था? कॉफी, शुगर विद ब्रेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की मेन थीम क्या है? एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द होटल हैड ओनली डैश ऑन ईच बेड, होटल पे क्या था? ओनली वन ब्लैंकेट, ओनली वन thin blanket on each bed. Next, near the junction of the Mazar-Bamian road, where there is a tiny village called, कौन सा छोटा सा विलेज था जंक्शन के पास मजर बैमियन रोड पे? वो विलेज का नाम क्या था? बुलोला। Next, during the travel, Rosa got severely dashed and she had to take a bus to the destination. Traveling के दौरान रोज क्या हो गई? She got severely injured. ठीक है, the cycle was severely injured. That is why Murphy had to take a bus. Next, Murphy's mode of transportation, her trusty dash was her companion throughout. मर्फी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था? हर ट्रस्टी रोज, जो कि क्या थी? इट वॉज हर साइकिल, या फिर जो उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है बाइक। ओके, वो उनकी कंपेनियन थी। नेक्स्ट, द स्टोरी प्रोवाइड्स अ विविड पोर्ट्रेयल ऑफ द डैश स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्टोरी क्या पोर्ट्रे करती है? द स्टोरी पोर्ट्रेस इनडोमिटेबल, indomitable spirit of adventure. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand the chapter better. And this finishes our chapter.
Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.